All right, everybody. So you can see that this is from MS Papers 466 page number hai. If you have this booklet with you, so you can open it. It's P1 of O levels. So it is page number 466 is 466 in MS book. Okay. They say that in the diagram A, B, B, C, C, D, and D, E are four sides of the regular polygon. So they say that A to B, B to C, C to D, and D to E, they are the part of the regular polygon. We don't know which polygon. Each interior angle of the polygon is 160. So this is 160, everybody. Okay. It is mentioned here. So then they say that uh, find angle AB, sorry, wait a minute, ABPQR. It means that they are talking about this line and this line, and DCP, they are talking about this line, and the last line is EDQ. This line, these three lines are straight lines. So the total angle would be 180. So I can see one thing. I need to find out CAB. Let me mark those angles CAB, CA and B. So I need to find out this little blue part. I need to find out CBP. I need to find out this little part as well. And then DQR. So DQR is this little part. Okay, that's it. So please pay attention, everybody. Look at the diagram. Beta, this given triangle, it is in front of you is an isosceles triangle. I hope I am clear to that. 180 minus 160 divided by 2 would be this little angle. That would be CAB. So 180 minus 160 would be 20 degrees, and 20 divided by 2 would be 10 degree each. So this will be 10 and this will be 10 as well. Okay. Now we know that CBP would be 180 minus 160, which is 20 degrees. So this angle would be 20 degrees. All right. So they say that it's a regular polygon. So we know that this total interior angle should also be equals to 160. And this interior angle should also equals to 160. 10 is given to me. So I can say that this is 150. Arom, can you hear me, bacha? Yes, sir. So you can open this booklet as well. And this is 150. So you can see one more thing here, that I can easily connect myself with other angles. So let's see that what other angles we can find in this one. Okay. So let's see सर that, ये okay, समझ this नहीं है कि ये 150 क्यों है. बेटा उन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि ब्लू ब्लू लाइनें जो हैं दीज आर द पार्ट ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स. तो उन्होंने कहा था कि ये एक एंगल 160 है, तो क्या ये भी 160 नहीं होंगे टोटल? जी सर. तो ये नीचे 10 छोटा सा पीस था ना, तो ये ऊपर वाला 150 नहीं होगा फिर? हाँ ठीक है सर. तो ये डॉटेड भी 160 होगा. तो वदान ये 20 डिग्रीज आ जाएगा. एनी प्रॉब्लम? नो सर. ओके, गुड जॉब. अच्छा जी. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, that we know that this little part can be found by subtracting 160 from 180. So this little part is also 20. Understood, Rami? जी सर. So this 20 and 20, it's a triangle. So this would be 140, obviously. Agree? So जी this सर. will be 40. So now I came to this blue part. So this blue part is my DQP, and DQP would be 180 minus 40 minus 20. So 180 minus 40 minus 20. So 120 degrees is the answer for DQR. 120 degree? No, sir. मैम सर Yep. ये It would be 120 60. तो Oh yeah. Which one? Oh yes. 120 minus 40 is 160. What? सर ये जो आपने Sir, 120 एंगल फाइंड किया, ये तो डी क्यू पी फाइंड किया ना, हमने तो डी क्यू आर फाइंड करना है. तो हम ओ 1 सॉरी, हाँ वो तो बाहर वाला है. सही 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 सही. तो ये एंगल आ गया हमारे पास 120. सो दिस एंगल, हमने ये एंगल फाइंड करना है. हमने रॉन्ग मार्क किया यहाँ पे. ये नहीं निकालना, हमें ये ब्लू निकालना था. तो दिस एंगल इज 60 डिग्रीज. गुड जॉब अरोम. सो दिस इज, यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं पहले.
This is angle DQP, DQ and P. So 180 minus angle DQR is 180 minus 120, which would be 60 degree. Good job. Well done, guys. 60 degree and this is 10. I hope all of you understood this question. मैंने बहुत slow पढ़ाया है. Question 2. Each interior angle of the regular polygon is 171. If the interior is 171, so exterior can be found by subtracting the interior from 180. So this would be 9. Calculate the number of sides of the polygon. So we know that exterior is equals to 360 by n. 360 divided by 9. So the answer is 40 degree, 40 sides. ठीक है जी? Is this clear? Is this Yes. clear, everybody? Yes. Yes, sir. All right. Look at question 3, please. Question 3 says that sign these two lines are parallel lines. So you have to remember those alternate corresponding and co-interior angles. So we got the idea that we are going to find out CBD. So we are going to find out CB and D, CB and D. So this is the angle we need to find. So 180 minus 65 minus 74. Add both of them in the rough working first because it's non-calculator. 9, 6 plus 7 is 13. 180 minus 139. So 180 minus 139 would be 41. Agree? So this is 41. Yes, sir. Let me mark this here as 41. So now they say that find reflex BDE. So BDE, this is the reflex angle they are talking about. So I can find out this little part by subtracting 65 from 180. So 180 minus 65 is 125. Am I right, or 115? It's 115. 115. Thank you. This is obtuse angle. वो reflex मांग रहा है. So 360 minus 115. It would be 245. It would be 245 degrees. I hope all of you understood this. बहुत slow पढ़ाया है. Yes, sir. सर Question ये 4 पे 115 क्यों है, एक बार फिर बता सकते हैं प्लीज? बेटा 115 क्यों है? क्योंकि आपको मैंने उस दिन पढ़ाया था कि को इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पैरेलल लाइंस जो होते हैं उनका सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है. a प्लस बी पढ़ाया था थ्योरम में आपको कि a प्लस बी इज 180 ऑलवेज. वो इंटीरियर कौन से होते हैं सर? इसको कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स ऑफ लाइन. ठीक है, अच्छा वो एंगल ए ठीक और है, एंगल बी है. ठीक है, तो ये हर ओके. लाइन में होते हैं? पैरेलल लाइंस में होते हैं. देखो फिर पैरेलल नजर आ रही हैं. जी 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 बिल्कुल. ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं साइम. जी जी. एंड डी तो टू सी इज डी, आल्सो पैरेलल. एग्री और नॉट? जी जी, तो इसमें सर डी प्लस ए 180 होगा. क्या चीज? डी प्लस ए 180 होगा. हाँ, लेकिन दोनों नहीं गिवन हमें. एग्री? जी जी. ओके. अब साइम देखें, यहाँ पे आपको 25 नजर आ रहा है ना. यस. अब ये 25 यहाँ पे भी बनेगा, ऑल्टरनेट है. एग्री? अब पढ़ लेते अच्छा हैं जी. क्वेश्चन. इन द डायग्राम ABA is parallel to DC, AC and BD intersects at E. तो this is angle at a point. 360 होता है यहाँ पे total angle. Triangle ADE is a right angle triangle. AD and ADE. So AD and E नहीं है, ये तो B है. Yeah, ADE. Sorry. ADE is a right angle triangle. With isosceles AD and DE कहता है कि इसकी ये दोनों साइडें भी बराबर हैं. Agree? So Arom, I'm just sharing these two sides with two different colors. Okay. So in case this is clear to you. Okay. Now they say that find X. So we are supposed to find out X here. So first of all, I need to find out this is my angle 90 here. So I can get the idea that this triangle ADB is also a right angle triangle. Agree everybody or not? ADB is also a right angle triangle. This is 90 given in the question. This is 25 Vadan. So this would be 55 or 65? 65. Agree? Yes. Agree Vadan?
Yes, sir. This total angle A is 65. Okay, so now I can see that this is isosceles as well. So this is 90, and so 90 divided by 2 would be 45 degree. Do you agree with me or not? Yes, Now sir. तो got वो the idea हमारा बच्चे, this is total 65. So Sir, 65 I minus have a doubt. 45 is Sir, 55 होगा. वो 15 होगा सर वहाँ पे. कहाँ पे बेटा? 45 एक एक आ मिनट गया आ ना. रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ, कुछ कह रही है जी आ रहा हूँ. This 65 would be 55. You did 180 minus 25 now. No बेटा, 180 minus 90 minus 25. हाँ तो 55 हुआ ना. 6 बेटा क्या हो गया है? जरा देखो, 65 plus 25 it is 90. So sum of these two should be 90 यार. अरोम समझ आई? अरोम, No, what are you finding? What is 65? see, I'm finding 65. I got the idea that this total angle is 65. Agree? Yes. This angle is 45. Do you agree? Isosceles right angle triangle. Agree? Yes. So the 65 minus 45 is how much? 20? Yes. Yes or no? So x will also be 20, which is alternate. Agree? Okay. I hope you got it now. सर जी जी बेटा. सर ये 65 क्यों है? बेटा आपको राइट एंगल ट्रायंगल का टोटल एंगल 180 नहीं होता क्यों? आप ट्रायंगल का नाम देखो. अच्छा हाँ, अल्टरनेट एंगल है वो 20 ए है. नहीं नहीं alternate. नहीं 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 अल्टरनेट गलत नाम ले रहे हो. Look at this right angle triangle ADB in the diagram. ADB is also DB. right angle triangle. जी ठीक है, तो ये 90 था, ये 25 है, तो ये 65 हो गया टोटल. एग्री? जी जी. इन्होंने मुझे सर ये दो लाइन. जी मेरा बेटा. सर ये डी ए बी तो 65 है ना, तो ये डी ए ई 45 कहाँ से आ गया? ओहो, अब मेरी बात सुनो बेटा. आपको एग्जामिनर ने कहा है ना शुरू में, ये जो ट्राइंगल मैंने शेड किया है नजर आ रहा है ADE. जी. अब मेरा बात सुने जरा प्लीज रामीन. A, D and E is isosceles right angle triangle. Agree? जी. It means that these two angles would be equal. Agree? जी. One angle is 90, so the other two angles should be equals to 90, so they should be equals to same. Agree? Because they are facing the same lengths. ओ यस ओके. Got it? जी. So देखो मैंने काफी explain किया, तो the answer is x is equals to 20 degree alternate angle. ठीक है? Alternate angles. ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं. Question 5. सर जी बेटा. सर ऐसे क्वेश्चंस में वर्किंग शो करने की जरूरत नहीं होती ना इतनी. बेटा डायग्राम आपका डायग्राम इटसेल्फ वर्किंग होता है ना. अच्छा ठीक है. ठीक है. अच्छा जरा देखें जी, यहाँ पे कहता है फाइंड बी सी डी दिस एंगल वी नीड टू फाइंड. अब इस एंगल तक जाने के लिए साइन कैन आई एक्सटेंड दिस लाइन? जी बिल्कुल. कैन आई एक्सटेंड दिस लाइन? जी जी. ओके लेट्स प्रोसीड नाउ. हमें पता है 180 minus 114 इज हाउ मच? 66. 180 minus 114 is 66. Now sin 180 minus 143 is how much? ये एंगल आ जाएगा 37. 37. So sine, if this is 37, so this should also be 37. Agree? Correspondings. हाँ जी जी. So angle BCD would be equals to 180 minus 66 minus 37. Let's add 66 with 37. 13. 1 plus 6, 7, 10, 103. So angle BCD is 103. Understood, Arun? Yes, sir. Any problem, bacha? No. Okay, good job. सर Proceed. थोड़ा सा ऊपर करे, एक सवाल है सर. ऊपर सर, वो पिछले वाला क्वेश्चन में. जी. नहीं सर. हाँ ये वाला सर. सर देखिए जो एंगल, ये जो ट्रायंगल ABE है ना सर, तो इसका टोटल 180 होगा ना. जी.
तो अगर हम कैलकुलेट करें कि 25 + 20 - 180, तो सर ये जो बचा हुआ एंगल है ये 135 हो जाएगा। तो ये प्रूव भी करेगा ना कि ये एंगल स्ट्रेट लाइन है, 45 + 135। तो तो ये सर भी इसके निकाल सकते सामने, हो, हाँ वही वही यही ये सर भी मैं पूछ निकाल रहा। सकते हो। एग्री? हाँ 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 जी, ये बस यही सारे सवाल निकल, था। देखो सब निकल जाएंगे और सब सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, यही सवाल था बस। वो रिक्वायरमेंट नहीं थी इसलिए निकाले नहीं हमने। नहीं नहीं सर, मैं सिर्फ वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था। चले जी। A pentagon has 4 angles and 1 angle x. Calculate the value of x. I think हम लोग ये कर चुके हैं क्वेश्चन, किया है ना ये क्वेश्चन बेटा प्रैक्टिस में, डन ऑलरेडी। सर पेंटागन 6 साइडेड होता है या 5 फाइव साइडेड? फाइव होते हैं, 5 साइडेड होते हैं बेटा। 4 angles and 1 angle, 5 एंगल होंगे तो 6 कैसे हो सकते हैं कुर्बान। ठीक है सर। पेंटा मीन्स 5, n is equals to 5। ओके। ठीक है, तो जब 5 में से 4 एंगल 2x हैं, एग्री, और एक एंगल x है, तो सम 540 के बराबर होता है। हमारे पास फॉर्मूला है टोटल इंटीरियर एंगल का, यहाँ से जी, निकाला हुआ है ये, ठीक है ना। 9x = 540। ठीक है, तो 9x is ठीक है equals सर। to 540, so x is equals to 540 by 9, so x is equals to, चलो ना 9 के टेबल नहीं आता माशाल्लाह। 6 नहीं 60। x is equals to 60, तो x की वैल्यू जो है 60 है, ठीक है। They say that A, B, C, D, E, B, C, F are two parts of regular n-sided polygons. So, Arom, this is a regular n-sided polygon, agree? And the lower part is also regular n-sided polygon. Any problem? No, sir. Okay. Now they say that two polygons are joined together with the HBC angle DCF. Calculate the value of n. So, can I distribute this 30 into 50-50? बेटा क्या 50-50 में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ? यस। जी सर। तो ये हो जाएगा 15-15 each. So if the exterior angle is 15, so Arom and Ramin, exterior angle formula is 360 by n. Copy that. 15 is equals to 360 by n. Omar, n is equals to 360 by 15. So that would be 24-sided polygon. ठीक है जी। नहीं सर, तो 15 कहाँ से निकल गया ये एक्सटर्नल एंगल्स में? बेटा मेरी बात सुने ना, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 होता है कि नहीं यार, होता है कि नहीं? इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर। 180 होता है कि नहीं? जी जी होता है। तो बेटा ये इंटीरियर है तो ये एक्सटीरियर नहीं होगा यहाँ तक। कौन सा इंटीरियर है? ये इंटीरियर नहीं है एंगल बी, ये इंटीरियर एंगल्स नहीं है ये वाले। अच्छा। ओ ठीक है। got it? Proceeding. जी सर। अच्छा, अब पॉलीगॉन्स में निकलते हैं, सर्कल्स में जाते हैं जरा, ठीक है। सर्कल्स में जाते हैं, आगे हम लोगों ने सिमेट्री पढ़नी है ऐसे भी। All right, can you see the circles everybody? यस। जी सर। Okay, we are supposed to find something, so CPR, so सर C आपकी आवाज़ थोड़ी सी लैग कर रही है। स्लो है। स्लो है सर, पता नहीं। हाँ, अजीब हो गई। नहीं ठीक है ठीक है। तो फिर आप अपना जरा कनेक्शन चेक कर लो। CPR, सॉरी सर। CPR, तो CPR ये एंगल है, ठीक है बेटा। दूसरा एंगल निकालना है CQR साइन, और CQR जो है वो ये एंगल है, ठीक है साइन। जी सर। एंड ABD, so Avinash, AB and D is this angle, Yes, sir. and the last angle is ADB, which is AD and B is this angle, agree? So I'm done finding the unknowns, so let's proceed, zoom into the shape now. Let's recall our circle theorems. ABC, in the diagram, two circle intersects at point P and Q. These two are the point of intersections of the circles. And the line AB is a tangent. Okay, AB is a tangent. So we have a tangent theorem that the tangent will make 90 degrees angle with the radii. I hope I am clear. Agree?
Agree everybody or not? बिल्कुल Yes. Okay. AD and BC are diameters, so AD and BC are diameters, so they for sure are parallel. Agree or not? Agree or not? Yes, exactly, sir. जी सर Exactly नहीं, ये this is not the guarantee. Okay? Sir, not a हाँ guarantee. ना सर हाँ जी, और गारंटी अभी क्यों नहीं है? गारंटी सिर्फ एक वजह से मिली है, एग्री? और वो वजह ये टेंजेंट है। क्या है बेटा? वो tangent. अभी आपको साइन आई हैव एक्सप्लेन दिस दैट टू टेंजेंट्स को इंटीरियर एंगल सम इज 180, एग्री और नॉट? बिल्कुल And agreed you can see that 90 plus 90 is 180. I hope you copy that. जी सर All right. So then if these two lines are parallel, so this is 40, so this is also 40. Do you agree with me? Alternate angle? Yes or no? सर फिर Yes. जरा बता सकते हैं Beta, this angle is 40 degree. तो क्या ये alternate नहीं बना हुआ? Because this line given to ओ you is a transversal line. जी जी बिल्कुल अभी I समझ hope आ you गई well done. Good job. Okay, now we got that Sir, idea. फिर तो ABD 50 हो गया ना? बिल्कुल 50 होगा। अभी उसी की तरफ मैं जा रहा था। वहां पे आपका 90 बना हुआ है टोटल, तो 90 minus 40 is 50. Agree or not? Yes जी or no? सर यस सर Yes, All sir. right. Arom, can you hear me? Yes, sir. Arom, can I say that C to B, B to C, C to Q, and Q to R is a cyclic chord? Yes, sir. So will this be 140 or not? The reason is that in cyclic chord, the sum of opposite two is equals to 180. Agree? Yes, sir. All right. Now, Simon, I need your attention, please. सर ये 140 वाले पर नहीं समझा सॉरी बेटा साइक्लिक कॉर्ड है मेरा बेटा, ये जरा देख लो, जरा मैं इस शेप बाहर बना देता हूँ। एनी प्रॉब्लम? सर ये रेड वाले पे ना बनाए रेड नहीं वाले पे नजर ना आती बना। अब कौन सा कलर ले लूं? ग्रीन ले लूं? सर ये डिसअपेयर हो जाती है असल में अच्छा, तो वो तो मैं इसीलिए तो डिसअपेयर करता हूँ ना, गन बनता है फिर यहाँ पे। सॉरी ओके, इज दिस क्लियर? अच्छा कि ये नहीं कहा कि सर पिंक ले लें। नहीं सर गम ना करें ओके बेटा, ये देख रहे हैं आप, जी ये सर्कल के अंदर है, मैंने आपकी खातिर बाहर निकाल दिया। से थैंक यू। थैंक यू सर ओके, एंगल बी इज 40, एनी प्रॉब्लम? तो ये एंगल जी सर 140 होगा बिकॉज वी कॉल दिस शेप एज साइक्लिक कॉर्ड। अग्री और नॉट? अच्छा ये 140 ये हमने किधर से निकाला ये वैल्यू बेटा 180 से 140 को माइनस 40 को माइनस करेंगे तो 140 नहीं आएगा। ओह हाँ अच्छा ओ सर ये ऑपोजिट एंगल्स हुए ना इसलिए जी बेटा, ऑपोजिट एंगल है साइक्लिक। Opposite angles का sum 180 होता है cyclic chords में ना sir? जी बिल्कुल। अच्छा जी, अब साइम आपकी अटेंशन चाहिए अब मुझे फिर दोबारा थोड़ा सा। है सर आपके साथ ओके, अब जरा मेरा बेटा यहाँ पे जरा गौर करें कि मैं कुछ कलर कर रहा हूँ, जरा सब गौर करें। अच्छा रामीन बेटा, देख रही हो कि नहीं यार? जी सर। कभी कभी बिल्कुल ऐसा लग रहा है सो गई हो। नहीं नहीं। ओके साइम, जी सर दिस इज दैट स्टार शेप जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था। एग्री? तो ये बिल्कुल 40 है तो ये भी 40 होगा, फिर एंगल इन अ सेम सेगमेंट। हाँ ये गॉट वाला इट? जो मैंने पूछा भी था इस पर गॉट समझ ही इट? नहीं आ रही थी गॉट जी इट? सर क्लियर है? जी जी हमने सारे एंगल्स क्लियर निकाले। अब बारी है नीचे आंसर लाइन पे लिखने की। तो CPR, तो CPR कितना है बेटा, उसे बताइएगा यार। CPR इज 40। CQR, CQR इज 140। अरोम, गेटिंग इट बच्चा? Yes. ABD, AB and D is 50। Sir, मुझे CPR कुछ थोड़ा ऊपर से गुजरा है। ये येलो जो शेड किया मैंने, जी sir. समझाता हूँ तुझे, टेंशन ना लो। ADB, AD and B is 40। ओके जरा सब गौर करें बेटा प्लीज। देख रहे हैं? Yes sir. ये अब मैं उनको उनको समझा रहा हूँ जिनको आ नहीं रहा था।
ये चीज। जी क्लियर है मेरा बेटा? यस। अच्छा ये 40 था तो मैंने कहा ये भी 40 होगा, एग्री? यस सर। अच्छा ये मैंने क्यों बोला बेटा? ये अपने आप से नहीं बोला बेटा। बेटा ये देखो यहाँ पे ये माइनर सेगमेंट है सर्कल का कि नहीं? यस सर। दिस अ माइनर सेगमेंट और नॉट? यस सर। क्या ये पूरा स्टार एक ही स्टार्टिंग पॉइंट या ये एक ही का, दिस इज द स्टार्टिंग यस। एंड दिस इज द एंडिंग, बोथ की सेम है कि नहीं? जी सर। यस और नो? तो यहाँ से यहाँ पे भी जाऊंगा तो 40 बनेगा, एग्री? याद आई यस ये सर। डायग्राम के नहीं? ओ हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक। बस थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, आगे चलो। ओहो हो हा ना करो बस। चलो भाई, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। In the diagram, the point A, B, C, D, E lie on the center O, and DAC is 33 and AC is 70. Use less statements. I can see that. Okay, AD is the diameter. This is काम का statement. Okay. Find CDA. So C, D, and A. We need to find this. Then DEC, D, D, E, and C. D, E, and C. ये छोटा बच्चा, ये भी निकालना है. And then ABC, ABC. This one as well. एंड रिफ्लेक्स EOA तो ये रिफ्लेक्स नहीं है, रिफ्लेक्स ये है EOA। ठीक है जी? जी वदान, ये क्लियर है ना कि ये क्यों मैंने ये मार्क किया? जी जी सर, क्योंकि वो रिफ्लेक्स वो दूसरे ऑपोजिट साइड का होता है ना। चलो जी, बस अब हमें डायग्राम में जाने की जरूरत है। ओके सो आई कैन सी दैट साइम AD is a diameter. AD is what? diameter. It's a diameter. AD is a diameter. So C is making some angle with D, and that angle would be 90. Agree or not? जी सर। So can I say that this little part would be 20 degree? बिल्कुल, क्योंकि Agree राइट or एंगल ही not? बनेगा। Because क्योंकि राइट एंगल बनना चाहिए एंगल C पे। So 90 plus 90 minus 33 is this angle. So 90 minus 33 is how much बच्चा? जरा कोई बच्चा तो बता दे करे यार। 57. Thank you. It is 57. So Sir, this angle is 50। एक मिनट यार, ये पेन बहुत मोटा हो गया, चलिए मैं बहुत जूम इन चला गया ना। 57। मोहित समझ आ रही है मेरा बच्चा? सर अच्छा ये 20 की समझ नहीं आई कि 20 कहाँ मेरा से आ बेटा गया। ये 90 होता है टोटल एंगल इन अ सेमी सर्कल। उस पोइश जी जी। नाउ I need attention everybody. I need attention everybody. I hope I'm getting it. यस सर। जी Okay. सर। Beta, can you see this star thingy and this little part over here? So isn't it angle at a circumference is half and angle at a center is double? Haji? yes, sir. So this 20 and so this would be 40. 40. Agree? So Yes, if this is 40, so that is obviously 140. Agree? 140. Yes or no? Arom? Yes, सर ये So वो स्टार शेप नहीं है? बेटा ये वो आ, स्टार शेप नहीं है, एंगल एट अ सर्कमफ्रेंस सेंटर के साथ बना है। आपके स्टार जो है वो दोनों कॉर्नर सर्कमफ्रेंस के साथ टच होते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। तो रिफ्लेक्स AO 220 आएगा सर। AOE is reflex also the will be requirement. 220. Yes, It will be 220. yes, Reflex 180 plus 40 AOE. is 220, which is my last requirement AOE. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल AOE is equals to 220. How? Because 180 plus 40. Copy that, Arom, copy that. Yes, sir. Arom, I'm approaching till B. I can see a cyclic chord inside. Can you see that? A, B, C, D. Yes. Okay, angle D is 57. So Arom, I can say that this is 123. Any problem? No, sir. Because sum of the opposite two, it should be equals to 180 degrees. So what we found, जरा लिख लेते हैं, जो लिख लिया CDA. CDA is 57. DEC, DEC, अच्छा वो नहीं निकाला अभी हमने, ओके वो निकालते हैं हम लोग।
अच्छा, फिर A B and C is 123, ये भी लिख लेते हैं 123। ABC Sir, और नहीं how, गलत, sir? ये गलत जगह पे लिख दिया या How will DEC be 123? नहीं, DEC is unknown yet, wait for a while. Okay. Okay, and the reflex EOA is 220 degree. Okay, let's find out DEC now, the last part. Okay, so let's see that what we can get from this thing. So think about it. Yes, I can get this angle. Can I? No need to get this angle. No need to No, get this angle. we do need it. No need to get this angle. So everybody, please pay attention. सर I need फाइंड it. कौन सा करना है? I need. जी बेटा, क्या कह रहे हैं साहब? सर कौन सा एंगल अभी फाइंड कर रहे हैं आप? ये ई वाला DEE, ये एक ग्रीन रहता है ना, बाकी सब निकाल लिया हमने। अच्छा ठीक है ठीक है। अब जरा देखो भाई, साइम, आई होप आई एम गेटिंग दैट अटेंशन। कैन यू सी दिस ट्रायंगल? जी सर, You see नजर that? जी। अच्छा, साइम, can you also see this triangle? So Saim, the question is from you. What is angle E? 33। Good job. Well done. 33. It's 33. सर So तुक्का that, लगा है, पता नहीं। तो यार देखो ना, जरा देखो तो सही ना, दो येलो शेड की हैं, दो रेड शेड की हैं, कितना खूबसूरती से। इतने तो खूबसूरत आप नहीं हो जितना मैंने प्यारा काम किया है यहाँ पे। सर ये हम पेपर में ये शेड्स लेके जा सकते हैं? ले जाई ना यार, तुझे क्या कोई कहता है कुछ। हाँ वैसे ना पेपर सर। तक, वो पेपर तक 90 डेज हैं। इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा कि इंशाल्लाह क्वेश्चन देखोगे तो खत्म हो सर जाएंगे, ठीक है। ये मुझे 40 भी नहीं समझ आया कि 40 किस तरह है। 40 कैसे आया? ये ये येलो येलो तो वो एक थ्योरम था ना, वो जो अभी आपने एक दूसरे क्वेश्चन में किया था, तो मेरा मुझे बेटा, लगा कुछ। ये आपको याद है कि मैं आपको पढ़ाया था कि ये सेंटर का जो एंगल होता है ना, ये डबल होता है, एग्री? तो जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बनेगा वो हाफ होगा, एग्री और नॉट? एग्री जी, और नॉट? यस एग्री। देखो ये येलो वही चीज है कि नहीं? ये जो 70 के साथ है ना? हाँ, 70 के साथ ये 20 लिखा हुआ है ना मैंने, जी जी तो ये 20 हाफ है, तो सेंटर पे ये 40 होगा कि नहीं, जो मैंने येलो के अंदर लिखा हुआ है? जी होगा। अच्छा, आपके पास भी पेपर 2 की, पेपर 1 की सर बुकलेट, आप वो ओपन करो ना। आप पेपर 1 की बुकलेट में कर रहे हो कि नहीं मोईद? Sir, I have a doubt. या वेट अ मिनट, मोईद, जी सर। ओपन योर P2 बुकलेट, इट इज पेज नंबर 487। अच्छा उसमें है, मुझे लगा कि एमएस बुक्स वाला है। MS बुक्स वाला तुम्हारे पास पेपर 2 है ना यार? वो ग्रीन कलर वाला था। यस। अच्छा अच्छा, सही सही लाता हूँ वो। चेक करो पेपर 1, उसके ऊपर जो मैंने अभी नया दिया है आपको स्कूल में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जिसमें आपकी पिक्चर है। नॉन कैलकुलेटर, हाँ वही, ठीक है जी। अविनाश Sir, how is ABC 123? बेटा, इट्स अ साइक्लिक कॉर्ड। कैन यू सी दैट डायग्राम व्हिच आई हैव ड्रॉन हियर? Yes. आई होप आई एम क्लियर। ABCD is a cyclic Okay. chord, angle D Got is it. 57। और Got कौन it. Got सा it? पेज है? It's पेज नंबर 487 हमने कर लिया है। अभी चलते हैं जी 488 पे। सर यप। सर पेपर में एंगल्स बाहर निकाल सकते? हाँ बिल्कुल, ये जिस तरह मैंने निकाले हैं जी जी। बिल्कुल निकालें जी, ठीक है नहीं? अच्छा चलें जी, थोड़ा फास्ट करता हूँ क्वेश्चन। अच्छा, सी जी, कैन यू सी द स्टार? Yes, sir. Alright, so this star is what? This star is, here it is 34 and here it is Z. So Z is 34. Any problem? नो नो सर। सर। X is Okay. 68. What? X is 68. Well done. Good job. Alright. So this angle is 34. So this would be 68, which is X double 34, and this is 68. G.
Is this clear, everybody? Yes, Clear, sir. sir. Okay. So now let's proceed. Arsalan, can you hear me? जी सर आवाज आ रही Okay. A, B and E. Arsalan, ये एंगल A कितना होगा? 34 डिग्रीज एंगल A कितना होगा? सर ये तो 90 होगा ना तो ए 90 माइनस सर 34 90 माइनस 34 यस, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे 34 प्लस टी, तो टी इज इक्वल टू 90 माइनस 34, एंगल इन अ सेमी सर्कल 56. अंडरस्टूड? तो ये हो गया 56, 68, 34. जी क्या रह गया बेटा, क्वेश्चन में कुछ रह गया क्या? सर वाई भी तो निकाल रहे हैं ना? निकाल लेते हैं बेटा, खफा क्यों होती हो? मैं तो नहीं हो रही। अच्छा देखें जी, डी टू सी, सी टू बी, बी टू ए is a cyclic chord. D C B A. सर This is 180 माइनस 34 क्या बात है यार, वेरी गुड, जबरदस्त, शेर का बच्चा है. 180 माइनस 34, सर तो आपका 180 स्टूडेंट हूँ इसलिए 180 माइनस 34 कितना होता है? 146. 146. बेटा बटर बहुत महंगा है. क्वेश्चन खत्म, गुड जॉब. ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलें जी. सर ये ऐसा हो सकता है कि मतलब एग्जामिनर ये सर्कल में इतनी ज्यादा चीजें ना दे और थोड़ी सी दे, यानी हमेशा इतनी ज्यादा ही चीजें नहीं दे? नहीं, कभी ज्यादा, जितनी ज्यादा चीजें होंगी उतना क्वेश्चन आसान होगा, ये याद रखना. अच्छा सर। हाँ जी. कहता है कि इन द डायग्राम पी क्यू आर एस टी लाइन ऑफ सर्कल QT is a diameter. Okay, QT is a diameter. Where is QT? This is QT. Okay, it's indeed QT half. Okay, X is the point of intersection, so this would be vertically opposite. Agree? So I can find out this one. Yes or no, Saim? जी सर. So Saim, this is also 35. Agree or not? हाँ ना सर, आइसोसेलेस निकालो, है. निकालो बेटा, ये निकालो, शाबाश, जल्दी से निकालो. 125 and 35, 35 160 160, तो क्या ये 20 20 होगा? जी ये भी जी. 20 हुआ. चलो गुड. अच्छा ये आइसोसेलेस नहीं है हाँ जी. क्या मतलब है isosceles? सर, गलती से आइसोसेलेस बोला था बेटा इसलिए. ये ऐसी गलतियां ना करा करो, ठीक है? ठीक है सर. चाइना आके लगाऊंगा एक. ओके. साइम, यहाँ पे टोटल 90 होता है, तो क्या ये 70 होगा? जी सर. ठीक है. सो अली, ये कितना एंगल होगा बेटा, ये वाला? सर ये हाँ बोलो बोलो. 180 माइनस 70 ना 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 ना, 180 माइनस 125 काका. ओ सॉरी सॉरी जी 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 5, ये 55 हुआ, तो ये निकाल सकते हैं ये वाला भी. जी सर. ये कितना होगा? 180 माइनस 70 माइनस 55 क्या बात है भाई, 70 प्लस 55 इज 125, और 125 180 माइनस 125 इज हाउ मच? 55. ओके. साइम, दिस इज 70, सामने 70 बना है, तो क्या 110 लिख दूं यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? रामीन, जी कैन आई राइट 110 ओवर हियर? नहीं, पता नहीं यस, कैसे। सर सर साइक्लिक ये कॉर्ड पता क्यों? है क्या मतलब है यार? हाँ सर, इसलिए क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स का 180। अच्छा हाँ वो. ठीक. जी रामीन, अब आपको पता लगे? रामीन, सर पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही। किस चीज की, किस चीज की समझ नहीं आ रही? सर ये कैसे 110? बेटा ये आपके सामने मैंने ये जो येलो शेड किया, मैंने कोई मेहंदी तो नहीं लगानी पास पेपर को. देखो भाई, PS SR RQ, और ये समझ आया? यहाँ पे P पे 70 लिखा है, तो क्या यहाँ पे 110 नहीं होगा R पे? जी सर होगा। समझ आइए कि नहीं? आगे। ओ सर 180 से आपने 70 माइनस कर दिया। जी, तुम अभी सो के उठे हो. चले जी. Complete that following statement with a geometrical reason why PTQ is 35. Ramin, P, T and Q.
So PT and Q, why this angle is 35? Angle Reason in क्या a होगा? same segment. Very good. Angle in a same segment. Angle in a same segments or equal or equal. PQT. What is PQT? 55. 55. Okay. सर SPQ. जी बेटा, एक मिनट बेटा, जरा सर आंसर जी लिख पहले. सॉरी SQ is 70. अच्छा, ये थोड़ा सा ये लोगो आ रहा है. अच्छा जी, फिर आता है SRQ. SRQ 110. 110. वेरी गुड. अब साइम बोलो, आप क्या, जल्दी पूछो. सर ये एंगल इन सेम सेगमेंट वाला कौन सा रूल है, इस पर मुझे समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्यों. हुई 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 हुई. साइम, तुम मुझे मारो. क्यों सर? सर्कल नजर आ रहा जी नजर आ रहा है सर. है? मैंने अभी बनाया है. साइम ये जी जरा मैं देखो, मैं जहाँ पे 35 बने हैं, मैं बाकी शेप नहीं बनाई. ये 35 है और ये भी 35 है. एनी प्रॉब्लम? नो सर. ओके साइम, मेरा बेटा ये माइनर सेगमेंट होगा. ये नीचे वाला? यस. अच्छा ये लेफ्ट पर. ये माइनर सेगमेंट होगा कि नहीं यार, बस सिर्फ इतना बता दो, हाँ या सर ना. हम माइनर सेगमेंट किधर से लेते हैं सर? वो ये तो हो किधर कहीं भी हो से भी ले सकता है. सकते हैं यार, कहीं से भी ले सकते हैं. ये डॉटेड लाइन के नीचे माइनर सेगमेंट है, ठीक है. ठीक है. इन दोनों स्टार्स की स्टार्टिंग और एंडिंग सेम है, इसीलिए ये 35 होगा. ये दोनों भी बराबर होंगे और ये दोनों भी बराबर होंगे. पोइश्वे का ना. आओ सर. गुड जॉब. प्रोसीडिंग. Sir, can you remake that star? या दिस वन. Yeah. For which angles? The No, same one? just like no, just remake it. I want to see how you make it. So like, it makes sense to me because it's not. Okay, just give me a second, okay? Like for example, this way. So how is it touching the same point, like ending and starting? Okay, so please pay attention. Let me change the color for. Oh shit, star is gone. ये क्या हो गया? Okay, I got it. So Arom, I suppose that this is the starting and this is ending. Any problem? No, sir. अच्छा मेरा बच्चा जरा गौर करना. अच्छा भी ठीक है अरुण. Can you see that this is one arc? Any problem? No, sir. And this is another. Both of them have the same starting and ending or not? Yes. I hope I'm clear. Okay. Whew. Ramin, turn on your mic, please. Quick. Okay, it says that find angle BCA. Ramin, mic is on or not? जी sir. Okay, BC and A this angle. ATB this angle. And that's it. Okay, we have only two angles. Okay. Ramin, O, A, B, C are points on the circumference of the circle with center O. O is the midpoint of BC and ABC is 38. Okay, Ramin, what can you understand from this diagram? Make it quick. Sir, angle BAC is 90 degrees. Very good. It's 90. Good job. और एक मिनट. And BCA is equal to 180 minus 90 minus 38. So quick shortcut करो ना. 90 minus 38. Oh, 90 एक minus 38 is 52. ठीक है? okay. Okay, then. ATB एक मिनट. ATB is equal to 180 minus 52. नहीं ये तो cyclic सर ये chord तो के लिए. साइक्लिक कॉर्ड है ना. नहीं साइक्लिक कॉर्ड नहीं है. एक मिनट रुक जाए. मैं रुका हूँ बेटा, अपनी जगह पे बैठा हूँ. एक मिनट देखने दे. ओके बेटा, आप एक चीज मिस कर रहे हो और अभी मुझे गुस्सा आ रहा है. टेंजेंट देख रही हैं? तो टेंजेंट रेडियस के साथ क्या बनाता है? सर 90 डिग्री. तो 90 बनाता है. तो ये कितना होगा? 52. होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? जी. होगा.
हो गया। रामीन अब जरा गौर करें, दिस इज ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम एज वेल, ऑपोजिट इंटीरियर, एग्री और नॉट? जी रामीन आपको पढ़ाया था कि दोनों टेंजेंट्स बराबर होंगे, एग्री? तो अच्छा इसका सर। मतलब है कि ये भी 52 होगा, क्योंकि इसके सामने 52 है तो इसके सामने भी 52 होगा। तो क्या एंगल, ये मिसिंग एंगल निकालना मुश्किल काम है, ATB? नहीं तो ATB is 180 minus 52 minus 52. So 180 minus 104, which is 76. And BCA is 52. So we are done with the question. Proceeding. All right. देखे तो सही आज कौन कौन है यार, मैं तो आज बिल्कुल देखा ही नहीं कि कौन कौन बैठा हुआ है यहाँ पे। 19 चैट्स, 10 चैट्स। सर तो पास पेपर कब करेंगे? तो बेटा ये क्या कर रहे हैं हम? हेलो, ये कौन है भाई? अहमद सिर्फ टॉपिकल है। जी, ये टॉपिकल है ना बेटा? हाँ लेकिन एक दफा हम कोर्स कर ले उसके बाद फिर पास पेपर्स कब करेंगे? जी जी बिल्कुल, इस तरह है कि इंशाल्लाह लास्ट वीक ऑफ मार्च से टिल 7th of May we will be doing yearly past papers. सही है सही है। Got it? जी जी। Laluna, assalamu alaikum, how are you? You are very much silent today. So this x is double. Agree everybody or not? सर 7 मई पे तो पेपर नहीं है। बस पेपर तक मेरी क्लास होती है ना। अच्छा अच्छा। Okay, this is 106. So y would be 180 minus 53. Agree everybody? Y would be 180 minus 53. 127 cyclic chord. Agree? Okay. Y की वैल्यू आ गई है 127. So अभी पढ़ाया है साइन कि ये Z है तो ये भी Z होगा ना। सर जी सर। तो Z plus 62 is equals to 180. So 2Z is equals to 180 minus 62. 2Z is equals to 120, 31 118. क्या? हाँ ठीक। 118 divided by 2 on both sides. So it would be 5 and 59 59 degrees. जी This is 59 degrees. So y is 127. It's 106. तो यहाँ पे हम लिख देंगे 59 and 59 each. T निकालना है बेटा। T will be 31, sir. T would Because be 31. good job because some of these two would be 90. Agree? जी जी T plus Z is 90. So T plus Z is equals to 90. So T plus 59 is equals to 90. So T is equals to 90 minus 59, which is 31. Good job. Question finished. सर ये जो एंगल जी सर है, Angle? एंगल जी, एक मिनट शेप की तरफ करें। या जी बिल्कुल। सर ये एंगल जी जो है ये टी ए एक टेंजेंट है ना? टी ए भी टेंजेंट और टी बी भी टेंजेंट है। तो फिर तो फिर ये जो एंगल टी ए बी है ये 180 और 90 में से 53 माइनस करके हमारे पास ये छोटा एंगल आ जाएगा ना? क्यों बेटा, ये आपको किसने कहा ये रेडियस है? नहीं तो सर टी ए तो टेंजेंट है ना, और फिर यहाँ तो 90 डिग्री तो ये कंप्लीट होगा ना एंगल। नहीं, क्यों कंप्लीट होगा बेटा? रेडियस जो है ना बेटा वो टेंजेंट के साथ 90 बनाता है, यहाँ पे टेंजेंट तो थी नहीं, यहाँ पे 90 बनता है। देखो रेडियस और टेंजेंट 90 बना रहे हैं ना। अच्छा समझ आई बेटा? ये लाइन रेडियस नहीं है, ये तो कोड है। अच्छा जी ठीक है। साइम, कोई क्वेश्चन है तो आगे चलो। सर मेरा सवाल ये था कि टी ए एन और टेंजेंट में क्या कोरिलेशन है? उफ, कोई कोरिलेशन नहीं है कुर्बान, कोई कोरिलेशन नहीं है। ओके फिर नाम क्यों सेम है सर? बस फिर बताऊंगा किसी दिन सर तुम्हें रुकिए, फारिग बस होके। एक आखिरी सवाल, एक मिनट, अच्छा बस ये आखिरी सवाल। सर रुकिए, हाँ जी। सर बस वही सर जो एंगल जी था आपने दूसरा एंगल भी ये जी ही मार्क किया ना, तो आपको कैसे पता चला कि अगर एक एंगल जी है तो दूसरा भी जी ही होगा? ओए होए होए होए, माशाल्लाह, तो आई वाज ये एक्सपेक्टिंग। दोनों मुझे समझ टेंजेंट नहीं आ रहा।
सर ये I दोनों was tangents का expecting कि तुम मुझसे सवाल पूछोगी जरूर। ये डॉट देख रही हो? कहाँ? नहीं, कहाँ? चलो, नजर ही नहीं आ रहा अब इसको। सर ये मुझे जो नहीं डायग्राम समझ आ रहा। ये डायग्राम में बना रहा हूँ, ये डायग्राम नजर आ रही है कि नहीं? हाँ, आ रही है। अच्छा, अब गौर करो, ये यहाँ पे टेंजेंट कनेक्ट हुई है और ये टेंजेंट यहाँ पे कनेक्ट हुई है। एनी प्रॉब्लम? नहीं। ये थ्योरम हमने पढ़ा था, लास्ट थ्योरम था सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज का, कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द आउटसाइड विल बी इक्विडिस्टेंस। ये पढ़ा था हमने कि नहीं? बस मुझे समझ आ गई, मुझे समझ आ गई। तो बस देखो, तुम्हारा यही मसला है, समझ आ जाए ना तो आधी एक्सप्लेनेशन सुन के कहती हो बड़ा 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 खामोश। ओके, सर मैं अरोम एक कैन यू छोटा सा सवाल दूसरे टॉपिक से कर सकता हूँ? एक मिनट सबर करो मना, अभी हमें कौन से लांजे में फंसे हैं। ओके, सो अरोम कैन यू हियर मी? Yes, sure. There is a twist here, that we have a parallel line in the circle. Agree? Yes, sir. So parallel lines will have those angles, and those angles will be co-interiors, alternate, corresponding, like that. Agree? So shade parallel lines in the beginning because they will play some role. Okay. I'm discussing the transversal. So those two parallel lines are connected with only one line, and that line is this one. Do you agree with me or not? सर 40 प्लस जी इक्वल टू 62 होगा ना? जी, यही मैं कहने वाला था। So I can say that 40 plus z is equals to 62, which is alternate. So 40 plus z is equals to 62. So z is equals to 62 minus 40. So z is equals to 22 degree. Any problem, bacha? नो सर। Okay, तो Sir, z की value, हाँ how will it be 22? beta, this is alternate angles because these two lines are parallel. The z thingy. Okay, got it. Got it? Yes, sir. Okay, now I'm done with the parallel thing. So now what I can do here is, I can do one more thing here. Everybody please pay attention. I am going to make a star here. Arom, can you hear me? I hope. So this is the star I needed. So this is 40. So can I say y is also 40? Yes, sir. This is 40. So can I say y is 40? Yes, 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 sir. So y is also 40 degrees. Laluna, can you hear me, बच्चा? Yes, sir. बेटा मुझे आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, खैर तो है ना? जी। Okay, so now beta B, C, D, and E and A. लालूना, ये साइक्लिक कॉर्ड नजर आ रहा है बेटा आपको? B, C, D and E वाला? जी सर। मेरा बेटा ये 127 है, तो इसके सामने x लिखा है, x निकाल सकते हैं? 180 minus 127 is 50. 53, sir. 53. Good job. X is 53. So Laluna, can I say that this will also be 53? Yes, sir. हमने फाइंड नहीं करना, हम फाइंड कर चुके हैं, बाकी सब कुछ ऐसे ही समझा रहा था आपको। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी और नॉट? Yes, sir. चलो भाई आगे चलें। चलिए भैया चलिए। ओके, मजेदार क्वेश्चन। सो look at the diagram please. EAD is the requirement. EA and D, this is the requirement. EAF, this is also the requirement. BEA, BE and A, this is the requirement. And BCD, B, C and D, this is the requirement. Okay, मोहित बेटा आवाज आ रही है मेरा बच्चा? तो please pay attention everybody. O is the midpoint of AD. Okay, so that is the center. Okay, बस बाकी तो कुछ इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं। रामीन बेटा आवाज आ रही है मेरी कि नहीं? सब छुट्टी कर गए हो, क्या हो गया है? आ रही है सर, आ रही है। बैठे हैं सर। बेटा मैं बोर होता हूँ, फिर तरह बोला करो साथ साथ। 180 minus 138, 42. Agree? जी जी। Yes, sir. तो
can I say that OAE is isosceles triangle because OE and OA is radius? Yes, sir. जी So सर 180 minus 42. 180 minus 42 is 138. 138 divided by 2 would be 69 degree. Yes or no? Yes, sir. So can I say that this is 69? Yes. So for यस this सर angle, can I say that 90 minus 69 because it is tangent 21 degree? Agree, Ramin? यस 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 For this सर angle, can I say टेंजेंट के that साथ this ये is बड़ा नहीं हो सकता। जी मेरा बेटा? टेंजेंट के साथ तो 180 से बड़ा हो जाएगा। मेरा पुत्र ये जरा जरा गौर करना, ये आपका रेडियस है और ये आपका टेंजेंट है, तो रेडियस और टेंजेंट 90 बनाते हैं, इसलिए 90 से माइनस किया मैंने 69 को ताकि 21 आ जाए, ठीक है। और उमर अभी आपने ये फाइंड आउट किया है ना कि ये भी 69 है, एग्री? यस है। तो 69 में से बेटा 12 को माइनस करते हैं तो ये भी आ जाएगा 57। कितना आएगा? 57। ये भी आ गया। अब हमारा एक ही एंगल रह गया, वो कोने में बेचारा शरीफों की तरह बैठा है। एग्री और नॉट? जी सर Yes, ये ओके आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे है? बेटा, क्यों आपको आइसोसेलेस से बड़ा मसला है? ये देखो भाई, ओ ए ओ ई इज अ ट्राइंगल विद टू रेडियाइज। एग्री और नॉट? अम, तो रेडियस ऑफ द सर्कल तो सेम होते हैं ना, तो आइसोसेलेस ही बनाते हैं ना। अच्छा हाँ साइम, हाँ अच्छा ठीक है देखा है? अभी समझ आ आ गया गया। ना आपको समझ? साइम मगर फिर एक 69 डिग्रीज है और एक 42 डिग्रीज है, ये क्यों? किधर से 42 है बेटा? ट्रायंगल 69 ओ ही है गुगू। हेलो, जी। दिस इज 69। 57 प्लस 12 इज आल्सो 69। और पीस में करके लिखा है मैंने वहां पे। ओ सॉरी। ओके सॉरी। इतना घुमा फिरा के कहते हैं कि आइसोसेलेस है, सीधा सीधा वो लाइन बना दे तो आइसोसेलेस का पता चल जाएगा। हाँ तो और क्या? तो बेटा वो क्यों लाइन बनाई है? वो इसीलिए तो कहते हैं कि तुम पढ़ के आओ। ये क्या, ये कितना एंगल होगा बेटा, ये बताओ शाबाश गौर से। व्हाट वुड बी दिस एंगल? फिर कौन सा Which एंगल कह angle, रहे ये हैं? sir? एंगल सर बी, 42। ये वाला। नहीं 42 का हाफ 21। 21, sir. हाँ जी। वो सो सर वो स्टार बन रहा था इसलिए मैं। बेटा वो स्टार बन रहा था तो वो वहां वो सेंटर पे कनेक्ट है, दीवार के साथ कनेक्ट हो तो तब सेम होगा, सेंटर के साथ अच्छा कनेक्ट अच्छा हो अच्छा फिर वो हाफ होगा, ठीक है। जी जी जी। ये तो उससे अल्लाह, बड़ा लग रहा है 42 तो से। लग रहा है तो क्या हुआ? इस तरह तो देखने में तुम भी मुझसे बहुत बड़े लगते हो, लेकिन तुम हो तो नहीं ना। ओके, तो बेटा ये एंगल कितना होगा उमर, अब बताओ अब शाबा। 90 minus 21. किसने कहा कि 90 है? हाँ ठीक है, चलो सही है, गुड जॉब। 90 minus 21 is, angle A is, angle B is 90 definitely, तो 90 minus 21 is 69. 69। चलो जी, ये एंगल भी निकाल लिया, जरूरत नहीं थी वैसे, निकाल लिया बेटा, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। अच्छा अच्छा जी, तो वी आर गोइंग टू फाइंड समथिंग मोर हियर। सो अरोम, can you hear me? Yes, sir. So what do you think about the angle CD and A, sorry, B, C and D? जी, what do you think about the angle CBD? Sorry, मतलब BCD. I don't know. It's Why? You obtuse. should. It's obtuse. Yeah. It's an And obtuse angle. what? It is a obtuse angle. It is an obtuse angle. That's what I can say. I want to find it. ठीक है? So Arom, this is 42. So can I get this little thing? Can I get this little thing? So 42 plus 12 is 54. So 180 minus 54 is how much बेटा? 126. 126। अच्छा 126। अच्छा मेरी बात सुनो बेटा, एक और चीज, एक आसान तरीका बताता हूँ।
So beta Ramin, if this is 57, so can I say that this star is 57? Yes, sir. So Ramin, this total angle is 90 degree. Do you agree with me or not? Yes. So 90 minus 57 is this angle. 90 minus 57 is 33. 33. Yes. So 180 minus 33 would be angle C. Agree or not? नहीं, एक मिनट, 90 माइनस 57 33 कौन सा एंगल होगा? ये 33 नीचे एंगल ए नहीं बनेगा क्यों? सर नहीं, 90 माइनस 57 कौन सा एंगल होगा? 90 minus 57 would be this angle 33. ओह यस, हाँ ठीक है. राइट एंगल ट्रायंगल है ना ये? अहमद देखो बेटा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है? ये एंगल 90 होगा सर्कल थ्योरम की वजह से। तो 90 में से ये 57 को माइनस करेंगे तो वी विल गेट 33। ओके सर ये CDBA साइक्लिक ऑड बन रहा है ना? हाँ जी, तो बस 133 से सबको माइनस प्लस करेंगे। करो तो 180 आएगा। किन सबको? 57, 69, 21 अरे ये और सी 53 को? फिर क्या आएगा? क्या यस चीज सर, बेटा? यही एंगल सी। एंगल सी हो जाएगा बेटा 180 माइनस 33, साइक्लिक कॉर्ड है देखो। 147 सर। तो एंगल सी वुड बी 180 माइनस 33 कितना आता है? 147. 147 degree. So this is 147. EAD and D is 69. EAF is 21. BEE sorry, BE and A is 57. Done. देखो 1 2 3 4 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। मजा आया वैसे यार। कुछ क्वेश्चंस कर दूंगा यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे वो कह रहा है कि आपको एक सर्कल थ्योरम दिया है और हमारी क्लास भी खत्म हो गई है माशाल्लाह। 8:05 हो गए, 65 मिनट गुजर के समझ नहीं आई। सर एक छोटा क्वेश्चन कर लूं? कौन सा छोटा क्वेश्चन? सर इसके हवाले से नहीं है सर, वो ग्राफ पे एक टेंजेंट बनता था ना, तो सर उसका अक्सर वो पास्ट पेपर में पूछ लेते कि इसका टेंजेंट का वो बताएं, क्या कहते हैं, स्लोप बताएं ना। तो सर उसके दो तरीके, एक तो राइज डिवाइड बाय रन है ना, तो हाँ। दूसरा सर ये तरीका हो सकता है कि फार्मूला। उसी टेंजेंट पे कोई से भी 2 पॉइंट्स लेके और उसको फिर यस कर ले। बिल्कुल 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 बेटा देखो याद रखो, मैथ्स में जब आपको ग्राफ गिवन हो ना, ठीक है, जी सर। जब आपको ग्राफ गिवन हो तब यूज करें राइज बाय रन। अच्छा सर। ठीक है, राइज बाय रन को इस्तेमाल करें। लेकिन जब ग्राफ अवेलेबल ना हो, ठीक है, अच्छा सर। तो देन यूज फार्मूला। इज दिस क्लियर? ओके सर, ठीक है। तो बस ये सीन है सारा, बस आपको समझ आ जानी चाहिए वैसे। हाँ आ गई सर। आ गई है? जी सर। चलें जी, हेलो थैंक यू सर। सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू, बाय, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।